No. Okay, ji, today we are talking about earned value management. I will just repeat the earned value thing which I just started discussing. In earned value management, we are actually trying to marry up the schedule progress as well as the cost progress, as if we can control both of them together. Normal trend is that we move on with progress from the schedule point of view. We do not consider and we do not take into account the costing part of it, which I'll show you is extremely important. Normally we take progress in percentages, which is an erroneous method. And in percentages, what we are doing is we are using approximation, and this approximation is on percent basis, meaning that out of 100, this is approximately 20% we have completed. So we keep adding these percentages to our progress to make it more realistic. We can go to the fractions, 20.25% and things like that. So we try to impress our bosses or to whomsoever we are reporting that we are being very accurate, whereas we are being highly approximated. So what should be the mechanism to measure the progress itself? Some people say, oh, it is very simple. You measure the progress in days. Okay, fine. What is your progress on this project? 10 days have passed. So what? If 10 days have passed, does that mean that you have done the job which was supposed to be done in 10 days? No, we are not answering that question. If you say 20% of work has been done, does that mean, what does that really mean? Does that mean that you have done 10% or 20% of the total work, or the work which had to be done till now, 20% of that you are talking about? So we don't really understand. Once you say that the progress is 20% and this is 20% out of the total work, I do not know that were you supposed to do this much or more. Maybe the target was for today, you should have done 30% job. But you are reporting 20% and you are not telling me that you were supposed to have done 30% and you have just met 20% and you are 10% behind. You are not at all telling me this, nor this percentage indicates towards that direction. Moreover, in percentages, we all tend to make our own kind of approximation, and the two parties who are, one who is reporting and one who is receiving the report, both may have a different way of approximating. And when I say it is 20%, the other party may not consider it 20%. They may consider it just 5% or 10%. So this conflict will rise at a quite later stage when the project is not completing in time and you start to audit where is the problem, and then the party you are reporting to tells you that your job is not even 50% complete and you are progressing, you are giving the progress of 80% or 90%. So this is, there is no agreement. Now, probably what we need to do is we need to not rely on percentages, because percentage is a Likert scale. You understand what is a Likert scale? If I ask you how happy you are, how would you tell me how happy you are? Okay, tell me how happy you are. Ji, Ghazali? Sir, we will say कि very happy, less happy, okay, or most happy. Okay. Not in a percentage. Not in a percentage, but in whatever, if you say I am very happy and Fahad also says I am very happy, how would I know that the level of both of your happinesses is equal? Your perception of very happy is both different, isn't it? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है.
So to put this perception in place, I must give you a scale that this is a scale from 1 to 5, 1 being very sad and 5 being very happy. So on a scale of 1 to 5, where do you place your happiness? Right? So I can name these scales as you said, very sad, normal, happy, very happy, or something like that. And then I could ask you, now tell me, where do you stand? And you may say, I stand at scale 4. That means I am happy, but not very happy, right? So now you are able to ascertain where do you stand. So by providing this scale, I have provided you a means of approximation. Now, if I tell you that make this scale from 1 to 10, it gives you more opportunity to divide your answer into 10 portions and then select an appropriate one. It may seem like that you are being a bit more accurate, but 4 on a scale of 5 is equal to 8 on a scale of 10 or 80 on a scale of 100. So this remains an approximation, no matter if you are talking in percentages or even fractions. By adding fractions, you are making the scale even larger, not 1 to 100, but 1 to 10,000. But that does not lend any credibility to your approximation. So approximation is a rejected method. This is not the right method of measuring the progress, and that changes the whole perspective of measurement of project performance or progress. Then how to measure the progress? We have to have some scale like, length, like weight, like time, like money. So these are the various scales which can be properly measured. So is it possible for me to measure the progress of a work in terms of length or in terms of weight or in terms of some tangible scale, which is a proper scale, not an approximate false scale like a percentage, which is a Likert scale. Likert scale is only used when we don't have any other scale to work with. So let us first try to find, do we have any other scale to measure with? Number one, this is one problem. Second problem is you may be showing huge progress, wonderful progress, and maybe you are able to do the project before the time which was planned. Maybe it was planned for 6 months and you complete in 4 months. Is it something to be happy about? क्या ख्याल है जी? अगर मैं 6 महीने का प्रोजेक्ट 4 महीने में कंप्लीट कर लेता हूं तो क्या मुझे खुश होना चाहिए? जी सही है. ओके, बट इसमें भी दो बातें हैं. एक तो बात यह कि आपने ओवर एस्टिमेशन की हुई थी, उसको तो चले मैं भूल जाता हूं फॉर द टाइम बिंग. लेकिन इस वक्त हम एक और प्रॉब्लम की तरफ आते हैं कि आपने 6 महीने का काम 4 महीने में कर लिया. आपकी बड़ी वाहवाह हो गई, आपको मेडल भी दे दिया गया कि जी आपने तो कमाल ही कर दिया है. आपको मैं बताऊं आपके साथ होना क्या है. अभी कोई 6 महीने और गुजर लेने दें, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद नैब वाले आपके दरवाजे पे खड़े होंगे और आपको पकड़ के ले जाएंगे कि भाईजान आपने 10 गुना ज्यादा पैसा क्यों खर्च किया था इस प्रोजेक्ट के ऊपर. मेडल तो आपने ले लिया था, लेकिन आपने इतने ज्यादा पैसे क्यों खर्च किए थे? क्योंकि आपने कभी भी अपने प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान इस बात के ऊपर गौर ही नहीं फरमाया कि हम पैसे कब और कितने खर्च कर रहे हैं. ये वो फैक्टर है जो कि कंट्रोल कॉस्ट के हवाले से आता है. प्रोग्रेस ऑफ वर्क मस्ट बी एसोसिएटेड विद द मनी यू आर स्पेंडिंग. इफ यू आर ओवर स्पेंडिंग, लाजमी बात है काम तेज किया जा सकता है, पैसे ज्यादा खर्च कर लें, ओवर सोर्सिंग करें, आप क्रैशिंग कर लें, हर बात पे क्रैशिंग करनी शुरू कर दें, आपका काम जल्दी हो जाएगा. लेकिन एट द सेम टाइम यू माइट बी स्पेंडिंग से 3 to 10 times more money.
इज इट ओके विद यू? क्योंकि उस वक्त कोई नहीं पूछ रहा होता आप पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, पूछते आपसे उस वक्त हैं जब आपको पैसे एलोकेट करने होते हैं। जब एक बार पैसा एलोकेट हो जाता है तो फिर ब्लैकमेलिंग की सिचुएशन आ जाती है। आपका बॉस कहता है जल्दी करो, आप कहते हैं सर इतने पैसे और दे देंगे तो जल्दी हो जाएगा, ओके ए ले पकड़ो पैसे। वो पैसे आप लेते जाते हैं, काम करते जाते हैं, काम आप जल्दी कर देते हैं। अव्वल तो खैर तब भी जल्दी नहीं होता, मगर मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि काम आप जल्दी कर देते हैं, बॉस खुश हो जाता है, सारी पार्टियां खुश हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली पता ये चलता है कि आपने पैसे जो है वो कहीं ज्यादा ड्रा कर लिए। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बता रहा, दिस इज यूजुअली द केस इन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड वी इग्नोर इट। और लेटर अगर बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है तो बाद में वही वाली बात होती है, नैब वाले आके आपको पकड़ के ले जाते हैं और समझ किसी को नहीं आती कि गड़बड़ कहां हुई है। अगर मैं ऐसा कोई इंतजाम करूं कि जब जब काम की प्रोग्रेस तो मैं लूं ही लूं, साथ साथ मैं ये भी देखूं कि किस काम के ऊपर कितना पैसा खर्च होना चाहिए था और कितना पैसा खर्च हुआ है। अगर मैं कामों के हिसाब से पैसे का भी हिसाब किताब रखता जाऊं तो कामों की प्रोग्रेस के साथ साथ पैसों के ऊपर भी कंट्रोल रखा जा सकता है। जबकि हम साथ साथ पैसे पे कंट्रोल नहीं करते। ऑडिट्स आर यूजुअली डन आफ्टर द प्रोजेक्ट इज डन, और तब पता चलता है ओहो ये तो इतना ब्लंडर हो गया। अगर हमने कॉस्ट को और स्केड्यूल को इकट्ठे काबू में रखना है तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई निजाम राइज करना पड़ेगा जिसमें एक एप्पल टू एप्पल दोनों को कंपेयर किया जा सके। कॉस्ट को मेजर किया जाता है पैसों में और टाइम को मेजर किया जा रहा है परसेंटेजेस में। परसेंटेजेस की तो मैंने आपको पहले कहानी सुना दी कि परसेंटेजेस तो एक बिल्कुल ही वेग किस्म का एक तरीकाकार है। अगर से कि आपने अपने बॉस के साथ एग्री भी किया, कंस्ट्रक्शन के अंदर आप सिविल इंजीनियर जो काम करते हैं अपने ही थंब रूल बनाए हुए जी, सबने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जनाब। आप जैसे अभी जी हैं, आप लोगों का अपना एक अंदाज होता है काम करने का कि जनाब ये अच्छा ये 5-5 फुट दीवार बन गई है, चलो जी 25% प्रोग्रेस हो गई। ये किसने लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा है कि जब 5 फुट दीवार हो जाए तो 25% प्रोग्रेस हो जाती है, या जब फाउंडेशन हो जाए तो 15% प्रोग्रेस हो जाती है। सो ये वो थंब रूल्स हैं जो आप और आपके वर्कर में म्यूचुअली एग्रीड हैं, बट दीज आर नॉट एस्टेब्लिश्ड रूल्स। मगर कंस्ट्रक्शन वालों ने अपने हिसाब किताब बनाए हुए होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप आप एक घर बना रहे हैं, मैं सेंटोरस की बिल्डिंग बना रहा हूं, क्या सेंटोरस की बिल्डिंग पे भी ये रूल अप्लाई करेगा? वहां की तो फाउंडेशन और पता नहीं क्या बला है पूरी की पूरी, तो क्या वो फाउंडेशन इस पूरी बिल्डिंग का सिर्फ 15% कहलाएगा? क्या हर केस में ये 15% काउंट किया जाएगा? तो फिर आप कहते हैं नहीं नहीं जी वो बड़ी बिल्डिंग्स के लिए जरा वो साइंस चेंज हो जाती है, उसके थंब रूल्स और हैं। तो मेरा मतलब है कि हम इन थंब रूल्स को ही देखते और पहचानते रहें। और ये तो आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब इस प्रोग्रेस को नापने का जो तरीका आप इस्तेमाल करते हैं मैं आईटी में इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो उसमें 15% की दीवार कहां से आएगी? तो ये एक यूनिफाइड तरीका भी नहीं है जो हर जगह इस्तेमाल हो सके। ये आपके इन हाउस रूल्स हैं और थंब रूल्स हैं और इनमें कोई एक्यूरेसी नहीं है। इसका मतलब है परसेंटेजेस वाला तरीका तो बिल्कुल बेकार है। अब जनाब मैंने जब कॉस्ट को भी इसके साथ साथ लेके चलना है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो मैं कॉस्ट को भी परसेंटेजेस में कैलकुलेट करूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझसे बड़ा अहमक कोई नहीं होगा कि एक नॉन अप्रोक्सीमेट एंटिटी को लेके मैं एक एग्जैक्ट एंटिटी के साथ रिप्लेस कर रहा हूं। पैसा एक एग्जैक्ट एंटिटी है, उसके साथ मैं परसेंटेज रिप्लेस करूं तो इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं हो सकती। अब मेरे पास दूसरी जो बाकी ऑप्शन बचती है वो ये है कि काम को भी पैसों के हिसाब से नापा जा सके। अपेरेंटली दिस लुक्स लाइक एन इम्पॉसिबिलिटी, मगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हाउ इज इट पॉसिबल टू measure the progress of work in terms of money, and if we can do that nothing is going to be more accurate than that. यहां तक जो मैंने बात की है इससे आप किसी हद तक कन्विंस हैं या मुकम्मल कंफ्यूज हो गए?
इसमें सर सिर्फ एक प्रॉब्लम ये नजर आती है कि कुछ एक्टिविटीज में कुछ एक्टिविटीज जो है वो एल्दो आपको नजर तो नहीं आती, लेकिन वो पैसा बहुत ज्यादा कंज्यूम करती हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल हम बिल्डिंग को ही ले लें तो उसमें जो फिनिश्ड आइटम्स हैं वो ओवरऑल बिल्डिंग की कॉस्ट का 40% होते हैं, लेकिन जब हम प्रोग्रेस शो कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टाइम, तो वो वहां पे तो हम उसको 80% बिल्डिंग को शो कर चुके होते हैं, although बिल्डिंग की अभी फिनिशेस जो कॉस्ट वाइज है 50% ऑफ द प्रोजेक्ट रहती है। एग्जैक्टली, दिस इज माई पॉइंट। यही तो मेरा पॉइंट है कि आप कॉस्ट में क्यों नहीं मेजर करते उस चीज को। आप वो कौन सी साइंस है जो आपने लगा के 80% कह दीजिए कंप्लीट है, किस बेसिस के ऊपर 80% कंप्लीट है? अपनी हाइट के हिसाब से 80% कंप्लीट है या नंबर ऑफ टास्क के हिसाब से 80% कंप्लीट है? ये तो कोई साइंस ना हुई भाई। अगर आप कहते हैं मेरे 100 टास्क हैं और 80 टास्क हो गए हैं तो 80% कंप्लीट है। ये हर टास्क का साइज डिफरेंट है, हर टास्क के ऊपर जो एनर्जी लगनी है वो डिफरेंट है। हाउ कैन आई जस्ट इक्वेट एवरीथिंग टू वन गो? या मैं कहूंगा जी बस छोटे परे आप ऐसे करें, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है 100 फुट है, जब 80 फुट हो जाएगी तो 80% कंप्लीट हो जाएगी। ये भी साइंस ठीक नहीं है। क्या पता नीचे की जो चीजें हैं जो नीचे लग रही हैं वो ज्यादा मेहनत तलब हो और ज्यादा महंगी हो, जो चीजें ऊपर लग रही हैं वो सस्ती हो और जल्दी बनने वाली हो। तो कहने का मतलब है कि और कोई तरीका एग्जैक्ट नहीं हो सकता सवाए पैसे के। पैसा एक एंटिटी है, एक फिजिकल एंटिटी है जो आपकी जेब से निकल के खर्च हो रही है। इतना पैसा लग गया तो आपके दिल पे छुरियां चल जानी चाहिए कि इतना पैसा तो गया। इसका मतलब है percentage of progress should be measured against money, not against the height of the building or the number of the activities or any other parameter. I know you are yet not convinced, मगर मैं इसके ऊपर भी आता हूं। जी बस बोलिए। इसमें सर जी सर इसमें एक चीज ये थी कि जिस तरह हम यूनिवर्सली चीजों को एक्सेप्ट करते हैं कि लेंथ मीटर में होगी, वेट केजी में होगा, तो हर जगह पे जो प्रोग्रेस है वो परसेंटेज में ही होती है। तो अगर मैं किसी को अपने पीएमपी की बुक पढ़ने के बाद, आपसे समझने के बाद उसे कॉस्ट में बताऊंगा, वर्सेस एक्सपेंडिचर बताऊंगा, तो कोई समझेगा ही नहीं फायदा। पहली बात तो ये कि ये जो अर्न्ड वैल्यू वाला मेथड है ये अब एक यूनिवर्सली नोन फैक्ट है। हम लोग पत्थर के जमाने में रहना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन पूरी दुनिया में अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट बाकायदा अर्न्ड वैल्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तौर पे पहचानी जाती है। अर्न्ड वैल्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब आज पूरी दुनिया में ये मेथड राइजुल वक्त है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके बॉसेस जो हैं उनके बिल्कुल अकल बुद्धि में नहीं है और वो परसेंटेज के अलावा कोई बात नहीं समझना पसंद फरमाते, तो आप पैसों में कैलकुलेट करके उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट वुड बी मच मोर एग्जैक्ट बिकॉज दैट विल बी बेस्ड ऑन ओनली वन थिंग एंड दैट इज मनी। आप कहते हैं जी ये मेरे 10,03,025 रुपए खर्च होने थे, इसमें से 22,000 इतने इतने खर्च हो गए, तो दिस इज 1% ऑफ द टोटल मनी। दिस इज मच मोर एक्यूरेट देन टेकिंग द परसेंटेज ऑन एडहॉक बेसिस। कभी हाइट पे ले ली, कभी नंबर ऑफ टास्क पे ले ली, कभी किसी और पे ले ली। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कोई किसी तरह से लेता है परसेंटेज, कोई किसी तरह से लेता है। ये तो कोई बात नहीं हुई। कंस्ट्रक्शन में किसी हद तक हम कॉस्ट वाले फिलॉसफी पे काम करते हैं। हम जो बीओक्यूज बनाते हैं और मेजर करते हैं फिजिकली वर्क को, वो हम किसी हद तक कॉस्ट वाली फिलॉसफी पे काम करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम कॉस्ट को इग्नोर करके फिर अप्रोक्सीमेशन में आना शुरू कर देते हैं। हम बहुत सी प्रोग्रेसेस जो हैं वो अपने तुक्कों पे लगानी शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर बीओक्यूज पे भी चलते रहें तो किसी हद तक आप अर्न्ड वैल्यू वाले मेथड के करीब करीब चल रहे होते हैं। जी फाद, आपका क्या ख्याल है? सर जो बात आप कर रहे हैं वो बात मतलब इसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रूल से बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की भी बात करूं तो हम वही एडहॉक बेसिस पे परसेंटेजेस लेके और
मैनेजमेंट को अपडेट कर देते हैं जो भी प्रोग्रेस होती है। तो मतलब जो तरीका कार अभी तक हमने अपनाया हुआ है, जो मैंने देखा है बाकी मैनेजर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो तो इसी तरह करते हैं। ओके, कह रहे हैं कि वो गलत है। हम्म, तो लेकिन जो बात आप कर रहे हैं मैं उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई थिंक मतलब इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक इट्स वाइज टू पोर्ट्रे द प्रोग्रेस इन दिस वे, जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन मैं उसको सिर्फ थोड़ा मैप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने जो काम करता हूँ उसमें ओके। वैसे मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूं कि आप अभी बाहर काम कर रहे हैं और वहां पर भी आप लोग अगर इसी तरह से काम करते हैं, क्योंकि ये चाइनीज जो हैं, मुझे इस बात का पता है कि चाइनीज ग्रेट नंबर्स में नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पीएमपीज का टोटल नंबर है उसमें करंटली मेजर कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम चाइना। मे बी इट इज ड्यू टू द पॉपुलेशन, बट जिसे कहते हैं ना कि हर्ड्स एंड हर्ड्स ऑफ चाइनीज आर लर्निंग दीज न्यू टेक्निक्स एंड दे आर टेकिंग ऑन। मेरा ख्याल है कि आपकी जेटी के अंदर भी, जेटी है कि कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है? बात जेटी से, जेटी है ना, आपके जेटी में भी पीएमपी जी जेटी सर, जेटी, हाँ उसमें पीएमपी तो होंगे ना? बिल्कुल। तो जो पीएमपी करके आया है सर, वो अगर कुछ और नहीं तो ये वो तो जानता ही होगा कि अर्न वैल्यू क्या है। ये एप्लीकेबिलिटी की बात है कि आपके यहाँ उस चीज को अप्लाई नहीं किया जा रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि ये चीनी सारे जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है उनको पता नहीं है। हम अपने पाकिस्तानी शायद चीजों को इतना ना जानते हो, लेकिन उनको इन बातों का पता है। लेकिन वो लाजमी बात है कि वो अपने तरीके के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। खैर एनीवेज जी, मैं आगे चलूंगा और मैं आपको बताऊंगा जी। बिल्कुल सर। नहीं सर, मैं ये कह रहा था मैं किसी की क्या बात करूं सर, मैं तो अपनी बात करता हूं। मुझे नहीं पता इस चीज का, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता अर्न वैल्यू का अभी तक, एटलीस्ट अब जो हम पढ़ रहे हैं हो जाएगा। अभी हम अर्न वैल्यू की तरफ आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्या। पहली बात तो हमने ये एस्टेब्लिश कर ली कि अब के बाद हम परसेंटेजेस में बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी को रिपोर्ट परसेंट में करनी है वो मैं आपको तरीका अलग से बताऊंगा कि जो हमारी अर्न वैल्यूज निकली हैं, जो कैलकुलेशंस हमारी निकली हैं, उनको किस तरह परसेंटेजेस में कन्वर्ट करके दूसरों को बताया जाए, तो वो हम देख लेंगे। लेकिन अदरवाइज अंदरूनी तौर पे हम अपना सारा काम जो है वो परसेंटेजेस के, वो पैसों के हिसाब से मेजर करेंगे। ओके जी, अर्न वैल्यू में देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज यूज। अब जरा मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुनिएगा क्योंकि ये समझने वाला है। आपने एक बजट इस्टेब्लिश किया था कि नहीं किया था? जब आपने प्रोजेक्ट का प्लान कंप्लीट किया तो आपने एक बजट असर्टन कर लिया कि टोटल इतना पैसा लगेगा इस काम के ऊपर। लेकिन यहां मैं एक बात क्लियर करता चलूं, दिस इज नॉट द अमाउंट इन विच द प्रोजेक्ट वॉज अवॉर्डेड टू यू, दैट इज नॉट योर बजट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कोई एक्सप्लेन करेगा? उसमें सर वही वो आपकी फर्म के प्रॉफिट्स भी आने हैं, प्रॉफिट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। असल काम करने की जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट और प्राइस में फर्क है। जब बिड करते हैं ना कि ये काम हम इतने में करेंगे, तो वो आप उसको अपनी प्राइस बता रहे होते हैं कि जी मैं ये काम करने की ये प्राइस लूंगा, और एक्चुअली आपको वो उतने में नहीं पड़ रहा होता काम। वो काम जो है उसकी कॉस्ट कुछ और होती है। तो कॉस्ट एक तरफ है और प्राइस दूसरी तरफ है। इसके दरमियान का जो मार्जिन है उसमें आपका प्रॉफिट भी है, आपके रनिंग एक्सपेंसेस भी हैं, और बहुत सारे खर्चे उसके अंदर शामिल होते हैं। इसका मतलब है अगर आप कहते हैं ये काम हम 5 मिलियन में हमने बिड विन की है, तो इसका मतलब ये कतल नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को 5 मिलियन पकड़ा दिए जाएं कि भाई तू यशी कर जाके। अगर सारे पैसे उसी को पकड़ा देने हैं तो फिर हम लुटियां डालने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। we cannot make any profit out of the project. Therefore ये जो कॉस्ट एस्टिमेशन की बात हमने पहले की थी, उसका पर्पस ही ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछा जाता है कि तुम बताओ कि ये काम जो तुम्हें करने के लिए दिया जा रहा है तुम कितने में कर लोगे। लेकिन इससे पेशतर जब हमने इन हाउस बिड बनाई थी, तो बिड बनाने से पहले हमने एक अप्रोक्सीमेट बजट असर्टन, कॉस्ट असर्टन की थी। बिड डालने से पहले
हमने एक कॉस्ट, बेशक वो सतही तौर पे ही सही, लेकिन कोई तरीके से हमने उसको असर्टन करने की कोशिश की थी और उसको असर्टन करके हमने कहा तकरीबन इतने में काम हो जाएगा, इतने हमारे खर्चे आ जाएंगे, तो इतनी बिड डाल दो। अब जनाब उस बिड के ऊपर नेगोशिएशन होने के बाद से कि आपने 5 मिलियन की बिड डाली, उन्होंने 4 मिलियन में एग्री कर दिया, 4 मिलियन में कॉन्ट्रैक्ट आपको अवार्ड हो गया। आपने क्यों एक्सेप्ट कर लिया 1 मिलियन लेस के अंदर? क्योंकि आपको पता था कि असल में ये काम तो 2 मिलियन में हो जाना है, बाकी तो हमारे प्रॉफिट्स और बाकी दूसरी चीजें हैं। तो आपको फेयरली गुड अंदाजा था, आपने पहले से एस्टीमेट लगाया हुआ था कि ये काम तकरीबन 2 मिलियन में हो जाएगा। अब आप प्रोजेक्ट मैनेजर की बारी आई है। अब आपको अंदाजा है कि ये काम 2 मिलियन में हो जाएगा, आपको पता है कि ये 5 मिलियन की बिड डाली गई थी और आपको ये भी पता है कि कॉन्ट्रैक्ट 4 मिलियन में साइन हुआ है। अब आप प्रोजेक्ट मैनेजर से कहते हैं कि भाई वो तो जो था सो था, अब तुमने काम करना है, तुम बताओ कितने में करोगे। प्रोजेक्ट मैनेजर अब अपना डिटेल्ड एस्टिमेट लगाता है और वो कहता है कि सर, और लाजमी बात है कि जब वो एक एक चीज की गिनती और हिसाब किताब करके कॉस्ट लगाएगा तो वो एग्जैक्ट 2 मिलियन तो निकलने से रही, दैट माइट बी 2.01 मिलियन और 1.99 मिलियन, और कुछ फर्क तो होगा ना, कुछ ज्यादा कुछ कम, तो एक एग्जैक्ट फिगर आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बजट जो इसने कॉस्ट का एस्टीमेट लगा के दिया है, आया कि इसने सही भी लगाया है कि नहीं लगाया? क्या इसने कोई पैडिंग तो नहीं बहुत ज्यादा कर दी, बिला वजह कॉस्टों को बढ़ा तो नहीं दिया? और दूसरा कंसर्न ये भी होता है कि कहीं इससे कोई गलती सरजद ना हो गई हो कैलकुलेशंस करने में। इसलिए बजट वाले लोग आते हैं और वो अपना बजटेड अमाउंट एक जेहन में रख के आते हैं कि जनाब इसको 2 मिलियन से ऊपर नहीं देना या 2 मिलियन की इर्द गिर्द कोई अमाउंट इसको देनी है। जब प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि मुझे तो 3 मिलियन चाहिए, तो वो कहते हैं कि भाई क्यों? वो आपको याद होगा ना, -25 + 75 वाला, तो वो वाला एस्टीमेट उनके जहन में होता है, या बजट लगाने वालों का एस्टीमेट होता है -10 + 25। तो अगर आपका काम जो है 1 मिलियन का है तो उनको पता होता है कि ये 0.9 मिलियन से लेके 1.25 मिलियन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर का एस्टीमेट इस रेंज से बाहर जाता है तो बजट वाला बहुत शोर मचाता है, कहता है दिखाओ अपने कागज, दिखाओ अपनी कैलकुलेशन, और उनको बाकायदा ऑडिट करता है। और अगर कहीं गलती हो कैलकुलेशंस में, सम अप करने में, या किसी रैशनल बीच में जो डाला है आपने, जो रीजनिंग डाली है उसमें, तो वो उसको आपके साथ बहस करके आपसे ठीक करवा लेते हैं। मगर उसके बावजूद उनको पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपका जो टोटल सही कैलकुलेटेड एस्टीमेट बन रहा है वो कुछ थोड़ा ऊपर या नीचे, जैसे मैंने कहा 0.9 से 1.25 के दरमियान भी हो, तो वो लोग एग्री कर लेंगे। मतलब ये एक तरह की नेगोशिएशन है प्रोजेक्ट मैनेजर के और बजट देने वाले के दरमियान कि ये काम कितने में करना है। जब ये डिसाइड हो जाता है कि ये काम कितने में करना है और दोनों पार्टियां एग्री कर लेती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी एग्री करता है हाँ मेरी गलती थी, ये मैंने ठीक कर ली है, और अगर वो उसको कहा जाता है नहीं इससे भी कम पैसे में करो, तो वो कहता है जी कि फिर मेरी क्या कहते हैं क्वालिटी सेक्रीफाइस होगी या फलानी चीज होगी, वो उससे भी एग्री कर लेते हैं, अच्छा हम स्कोप घटा देते हैं या क्वालिटी घटा देते हैं या वट एवर, जो कोई भी आपके दरमियान एक एग्रीमेंट या निगोशिएशन होती है, उसके नतीजे में एक बजटेड वर्थ इस प्रोजेक्ट की इस्टेब्लिश कर ली जाती है कि अब इतना ही पैसा मिलेगा। और ना सिर्फ ये इस्टेब्लिश कर दी जाती है बल्कि दिस बजट शुड बी एलोकेटेड डाउन टू द एक्टिविटी लेवल। क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि बस तुम्हें हम 3 मिलियन देंगे इसमें करो जो कुछ करना है, या 2 मिलियन देंगे इसमें करो जो कुछ करना है। बेसिकली अगर आप ये करेंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर को समझ नहीं आएगी कि कहां से पैसे काटे जा रहे हैं, क्यों उसे कहा जा रहा है इतने काम में काम करने को। तो वो क्या करेगा, सारे बजट को स्लैश कर देगा उतना उतना, हर एक्टिविटी को, जिसमें से कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिनको स्लैश करना क्रिमिनल होगा। इसका मतलब यह है कि जो बजट देने वाला है वो खुद आपके साथ बैठ के ये डिसाइड करे कि कौन सी एक्टिविटी को कितना बजट दिया गया है। डाउन टू एक्टिविटी लेवल बजट एलोकेशन शुड बी मेड। अब जब डाउन टू एक्टिविटी लेवल होता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। उसको पता है कि हर एक्टिविटी का बजट कितना है और टोटल प्रोजेक्ट का बजट कितना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसको ये भी पता है, स्केड्यूल बना हुआ है
कि कब तक कौन कौन सी एक्टिविटीज हो जाएंगी। और अगर मैं उसे ये कहूं कि भाई प्रोजेक्ट के 1 महीने के बाद तक आप क्या कितना काम हो चुका होगा या होना चाहिए, तो वो पहले काम शुरू करने से पहले ही बता सकता है कि 1 महीने तक तकरीबन हमारी ये 10 एक्टिविटीज हो जाएंगी और हर एक्टिविटी का ये बजट है, तो ये टोटल जनाब इतने पैसे खर्च हो चुके होंगे। ये जो किसी एक पॉइंट के ऊपर हम उस वक्त तक के बजट जितना उस पर खर्च हो चुका होना चाहिए कैलकुलेट करते हैं, इसको कहते हैं प्लान्ड वैल्यू। अभी तक काम शुरू नहीं किया, अभी मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये जनाब आपका बजट शीट बन गया हुआ है, अब आप मुझे ये बताएं कि 1 महीने तक आप कितने पैसे आपको चाहिए, कितने पैसे खर्च कर चुके होंगे बजट के हिसाब से। आप कहेंगे जी 10 काम करने, 10 कामों का इतना बजट बना, तो इतने पैसे मुझे उस वक्त तक चाहिए, कह सकते हैं ना जी। दिस इज योर प्लान्ड वैल्यू। सो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एट एनी पॉइंट इन टाइम you can look back and tell how much work had to be done by this point and what is the budget, total cumulative budget till that point, कितना पैसा अब तक खर्च हो चुका होना चाहिए। ये जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं प्लान्ड वैल्यू, पीवी, या इसका एक और भी नाम है, वो है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल्ड, कि अब तक की तारीख तक जितना काम करना मकसूद है, जितना काम स्केड्यूल हुआ है आज तक की तारीख तक का, उसका बजटेड वैल्यू क्या है, बजटेड कॉस्ट क्या है। तो बजटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क स्केड्यूल्ड, ये दोनों बातें, बजट कब लगा था प्लानिंग में, वर्क कब स्केड्यूल हुआ प्लानिंग में, तो प्लानिंग ही में हमें पता होता है कि कब कब तक कितना कितना पैसा खर्च हो चुका होना चाहिए। आप लोग इस बात से एग्री करते हैं प्लान्ड वैल्यू से? जी जनाब। प्लान्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? तो इसका मतलब ये है, आप मुझे ये बताइए कि प्रोजेक्ट के आखिरी दिन आपने प्लान किया, 6 महीने का प्रोजेक्ट है, 6 महीने का जो आखिरी दिन है उस दिन आपकी प्लान्ड वैल्यू क्या होगी? प्रोजेक्ट के आखिरी दिन आपकी प्लान्ड वैल्यू क्या होगी? इन टर्म ऑफ किस में, परसेंटेज में, किस में? पैसों में। पैसों में हाँ, तकरीबन कंप्लीट होगा। कंप्लीट होगा, कंप्लीट का मतलब है कि ऑल दी एक्टिविटीज मस्ट बी डन, ऐसे ही है ना जी? जी एंड वी नो द बजट ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज, जी सर। एंड इफ वी सम अप ऑल दैट बजट, that comes out to be the total budget of the project. So the PV of the last day is the total budget. PV of the last day of the project should be the total budget, and we call it budget at completion, BAC. ये चौथे नंबर पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है BAC. So essentially BAC is also one of the PVs, but this is the last day PV, आखिरी PV है ये। तो क्योंकि वैल्यूज कम्युलेटिव हैं, तो प्रोजेक्ट की लाइफ में मुझे हर मोमेंट का PV पता है, मैं किसी भी मोमेंट का PV निकाल सकता हूं, और आखिरी दिन का जो PV है दैट इज द टोटल बजट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब आखिरी दिन तक पूरा बजट कंज्यूम हो जाना चाहिए, ऐसे ही है ना? आखिरी दिन तक सारे काम हो जाने चाहिए और हर काम पे जितना जितना बजट था वो कंज्यूम हो जाना चाहिए। So PV is a point in time during the life of a project when we look back and see how much money should have been spent on the work which is to be completed by this date. और BAC आखिरी डेट का PV है, यही डेफिनेशन BAC की भी है, लेकिन that is for the last date only. That represents the total budget which is called बजट एट कंप्लीशन, राइट जी? तो सर ये जो एक्सक्यूज मी, ये जो बजट एट कंप्लीशन था या बजट कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल पीवी जो था, क्या वो एक्चुअल एग्जीक्यूशन की अमाउंट होगी
ना 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 ना, हमने तो ये जो अभी हमने प्लान किया था वो होगी। एग्जीक्यूशन तो शुरू ही नहीं की अभी तक हमने। अभी तो हमने प्लान बस करके प्लानिंग रख कर रहे दिया हैं। है कि कब तक कितना पैसा खर्च करना है, कब तक कितने काम करने ठीक हैं है। और उन पे कितना कितना पैसा खर्च होना है, ये हमें पता है। तो अगर आप मुझे, अभी मैंने प्रोजेक्ट शुरू नहीं की, एग्जीक्यूशन में नहीं किया, और मैंने प्लानिंग कंप्लीट कर ली है, बेसलाइन कर दी है, और आप मुझसे पूछते हैं कि जी अच्छा 3 महीने बाद हमारी क्या सिचुएशन होगी, तो मैं आपको बता सकता हूं अपने चार्ट से देख के कि 3 महीने तक ये 40 काम कंप्लीट हो चुके होंगे और ये तकरीबन 1.5 मिलियन रुपया खर्च हो चुका होगा। कह सकता हूं ना, अभी प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं ये पॉइंट आपको। सर ये जो हम, जी जी। सॉरी, ये जो आप 1.5 मिलियन खर्च हो चुका होगा, ये जो हमारा बीओक्यू होता है, हाँ आप जी, उसकी बेस पे कहेंगे? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, पैसे की बेस पे ठीक है कहेंगे सर। ना कि हर चीज की बजट क्या है, हर आइटम का, हर काम का बजट क्या है। तो अगर 40 काम है तो हर काम का जो कॉस्ट है वो जमा कर लें, टोटल बजट ठीक है इन सर। दैट पॉइंट विच शुड बी स्पेंड, ठीक है ना, वो मेरा पीवी है, उस दिन का पीवी है, उस पॉइंट का पीवी है। यहां तक क्लियर हो गया जी? सो पीवी इज इसमें समथिंग। एक चीज सर, सॉरी सॉरी टू कट जी यू जी सर, सिर्फ एक चीज थी। जी। हम ये कह रहे थे कि प्रोजेक्ट 6 महीने का है, 3 महीने बाद मेरे 1.5 मिलियन रुपीस लग चुके हो। लग अब चुके होंगे। 1.5 मिलियन चाहिए। नहीं चाहिए नहीं, ये तो हम बजट में लगा चुके हैं। बजट में आपको पता है वो फंडिंग लिमिट रिकंसाइलेशन की थी हमने, उसमें हम जी बता सर। चुके हैं कि हमने कब कब कितना पैसा रिलीज करना है, और हम काम उसके हिसाब से ही कर रहे हैं। तुम्हारा ये पहले बेसलाइन स्टैब्लिश हुई, उसके बाद हमने फंडिंग लिमिट रिकंसाइल कर दी। हमने कहा जी कि इस प्रोजेक्ट पे हम 4 किस्तों में पैसा रिलीज करेंगे, पहली किस्त प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के स्टार्ट पे दे दी जाएगी, फिर 4 महीने बाद आपको दूसरी किस्त मिलेगी, एंड सो ऑन। तो वो फंडिंग लिमिट रिकंसाइलेशन इज अकॉर्डिंग टू दी जो हमारी बेसलाइन। सर मैं ये सवाल ये पूछना चाह रहा था, टाइम एंड कॉस्ट को जब हम इन कंपैरिजन ला रहे हैं, मैं कहता हूँ मेरी फाउंडेशन की जो कॉस्ट थी वो या थी 50,000 रुपये, और जो मेरी टाइम लिमिट थी जो मैंने उस एस्टिमेशन में कैलकुलेट की थी वो था 1 हफ्ता। तो वो हो गया। 1 हफ्ते के बाद मुझे 50,000 रुपए चाहिए होंगे। एक नहीं नहीं चाहिए नहीं होंगे, 1 हफ्ते के एंड तक मैं 50,000 का काम कर चुका का होना काम चाहिए। कर चुका हूंगा। एक अब मुझे हफ्ते में फंड मैंने कितने चाहिए? मुझे 50,000, उस वक्त तक 50,000 खर्च हो चुके होने चाहिए, अगर और कोई ठीक हो काम गया। नहीं हो रहा, अगर सिर्फ ये एक ही काम है जी एक जी। हफ्ते में, तो इस एक ही काम की का बजट है 50,000। इसका मतलब है कि मेरा पीवी प्लान्ड वैल्यू जो 1 हफ्ते बाद की है वो 50,000। मेरा ठीक हो टारगेट गया है सर। कि मैंने 50,000 अचीव करना है, 50,000 का काम करना है। ये ठीक हो बात गया सर, समझ आ गई। ओके। अब जनाब ये तो खैर आपने एक ही टास्क किया था। लेट अस एज्यूम कि देयर वर 3 टास्क टू बी डन। एक 10,000 का था, एक 20,000 का था, और तीसरा भी 20,000 का था, राइट? तो टोटल 50,000 हाँ। आपने एक हफ्ते के एंड पे 50,000 खर्च हो चुके होने चाहिए, और ये 3 काम कंप्लीट हो चुके होने चाहिए। ऐसे ही है ना? जी सर। ओके। अब जरा देखते हैं कि काम शुरू हो गया। एक हफ्ते के बाद जब हमने चेक किया तो पता चला कि टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 2 तो कंप्लीट हो गए हैं, टास्क नंबर 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर। एक हफ्ते में 3 टास्क करने थे, टास्क 1, 2 और 3। एक टास्क का बजट, पहले टास्क का बजट था 10,000, दूसरे का बजट था 20,000, तीसरे का बजट भी 20,000 था। पहले 2 काम हो गए, पहले 2 काम हो गए, तीसरा काम कंप्लीट नहीं हो सका। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या अकम्प्लिश किया? यू हैव अकम्प्लिश 2 टास्क ना? 30,000। Exactly, that is my point. So your earned value is 30,000 at that point. बात समझ आ गई? अर्नड जी वैल्यू सर। होता है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। जितना काम आपने कर लिया, 2 काम किए ना आपने,
उन दो कामों की बजट में जो कीमत लिखी हुई है, बजट में जो कीमत लिखी है वो कीमत नहीं जो एक्चुअली खर्च हुई है, उसकी बात नहीं कर रहा। कितने काम किए हैं आपने? दो। उन दो कामों को जरा बजट की लिस्ट में देखेंगे। पहला काम जो था वो 10,000 का था, दूसरा 20,000 का था। इसका मतलब है कि योर अर्नड वैल्यू बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक इज 30,000 and your planned value was 50,000. You are behind schedule by 20,000. हम ये नहीं कह रहे कि you are behind schedule by one activity या इतने days, हम कह रहे हैं you are behind schedule by 20,000. आप 20,000 काम रुपए का काम आपने कम किया है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है सर आपने प्रोजेक्ट टाइमलाइंस को कॉस्ट के अगेंस्ट ले रहे हैं। एग्जैक्टली लेकिन एट द सेम टाइम डोंट बी कंफ्यूज, आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट व्हाट यू हैव एक्चुअली स्पेंट। सो practically speaking, I am not talking about cost. I am talking about the variation in schedule. The variation in schedule is worth 20,000 rupees. The variation, schedule variance जिसे कहते हैं, is minus 20,000. हम 20,000 का काम कम किया है, इसलिए we are behind 20,000. इसलिए ये minus 20,000 is my schedule variance, which is earned value minus planned value. 30,000 अचीव किया, उसमें से 20,000 50,000 माइनस कर दें, काम जितना होना चाहिए था। तो इसका मतलब है जो हमारी अर्नड वैल्यू नेगेटिव में जा रही है 20,000, वी आर बिहाइंड द स्केड्यूल। नेगेटिव का मतलब है वी आर बिहाइंड द स्केड्यूल। अब मैं आपसे अगला सवाल करता हूं। अब मैं कहता हूं ये एक हफ्ता कंप्लीट हो गया है, जरा बताएं आपने पैसे कितने खर्च किए ऑन ग्राउंड? ऑन ग्राउंड पैसे कितने खर्च कर दिए? पता चलता है आपने 60,000 रुपया खर्च कर दिया। आज की तारीख तक, एक हफ्ता गुजरने तक, भले आपने किसी को एडवांस दिया हो, कुछ भी किया हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे तो एक बात बताएं, आपने पैसे कितने खर्च कर दिए अपने अकाउंट से? प्रोजेक्ट के अकाउंट से कितना पैसा खर्च हो गया है? आप कहते हैं जी इस हफ्ते के एंड तक 60,000 रुपया खर्च हो गया। आपने प्लान्ड वैल्यू थी 50,000, अर्न आपने किया है, अर्नड वैल्यू आपकी है 30,000 और पैसे खर्च कर दिए आपने 60,000। तो एक बात तो साफ जाहिर है कि पैसे ज्यादा खर्च हुए हैं, ये मानते हैं आप? पैसे ज्यादा खर्च हुए ना जी? जी सर। कितने पैसे ज्यादा खर्च हुए हैं ये बता सकते हैं मुझे? 30। ओके, 10 क्यों नहीं कहा आपने? क्योंकि वो एक काम रह गया था ना अभी। ओके, जो काम नहीं हुआ उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर सकता। इसका मतलब है जो काम हुआ है उसके ऊपर लगने चाहिए थे 30,000 रुपए और मैंने लगा दिए 60,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि आई एम ओवर स्पेंडिंग। मैं हर 30,000 के ऊपर 60,000 खर्च कर रहा हूं। अगर मेरा यही हाल रहा तो ये प्रोजेक्ट जो कि से 3 मिलियन में मैंने करने का वादा किया था, ये तो 6 मिलियन तक जाएगा। क्या कहते हैं? लेकिन सर वो जो हो सकता है, वो जो 10,000 उसने एक्स्ट्रा खर्च किए वो अगले एक्टिविटी के लिए प्लानिंग का हो। सर अगला मौसम आएगा, अगला हफ्ता आएगा, उसकी प्रोग्रेस अगले हफ्ते उठाएंगे। अभी तो स्टेटस ये है कि आपने एक बड़ा ही जबरदस्त दाग लगा दिया है। आपने दुगने पैसे खर्च कर दिए। भले आप जहां से मर्जी पूरे करें, भले आप ओवर टाइम लगाएं, भले आप किसी को एडवांस दें, वापस लें, वो मुझे नहीं पता। मुझे तो एक बात पता है कि आपके 50,000 रुपए का आपको बजट दिया गया था, 3 काम करने थे, काम आपने 2 किए और वर्थ जो था उसकी 30,000 थी, अर्न वैल्यू आपकी 30,000 थी और आपने ऑन ग्राउंड पैसा खर्च कर दिया 60,000। तो आपको वार्निंग लेटर तो इशू हो गया दोनों तरफ से, स्केड्यूल के हवाले से भी कि स्केड्यूल वेरिएंस आपकी -20,000 है, क्यों है, और कॉस्ट के हवाले से कि कॉस्ट वेरिएंस आपकी -30,000 है। 30,000 आपने ओवर स्पेंड कर दिया है। ओवर स्पेंडिंग नेगेटिव है, तो इसका मतलब है
कि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कंपेयर की जा रही है अर्नड वैल्यू के अगेंस्ट। तो अर्नड वैल्यू में से एक्चुअल कॉस्ट निकाल दें। अर्नड वैल्यू थी 30,000, इसमें से एक्चुअल कॉस्ट खर्च हुई 60,000, 30,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू माइनस 30,000। ये मेरी कॉस्ट वेरिएंस है। पैसा कितना ज्यादा खर्च हो रहा है वो माइनस 30,000 है, और काम कितना कम हुआ है वो माइनस 20,000 है। बात बनती है जी। लेकिन सर इसमें एक चीज है कि सारी चीजें एक हफ्ते के एंड पे तो आप इनको ऐसे कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जो आप एक्सपेंडिंग कर ओवर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये आगे आपको बराबर कर दे। तीसरे हफ्ते चौथे हफ्ते में जाके सर जी, आप अपनी वो जब चौथा हफ्ता आएगा तब देखेंगे, तब भी देख लेंगे। तब भी हम यहाँ खड़े, घोड़ा भी है मैदान भी है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर पहले हफ्ते ये ड्रामा कर सकता है वो चौथे हफ्ते में इस गैप को इंक्रीज करेगा, घटाएगा नहीं। ये मैं आपको शर्तिया कहने को तैयार हूं। अगर मैंने उसे पहले हफ्ते ही वार्निंग दे दी कि बंदे का पुत्र बन जा, तो आप ये देखेंगे कि अगले हफ्ते वो अपने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वो अनड्यू एक्सपेंसेस नहीं करेगा और अल्टीमेटली टारगेट को भी मीट करने की कोशिश करेगा। मैंने उसको दोनों घोड़ों की लगामें खींचनी है। मैंने उसको मैंने दोनों तरफ से वार्निंग दे दी है कि अगले हफ्ते इस चीज को इंप्रूव करो। तो वो टाइम से भी इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, कॉस्ट से भी इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, और अल्टीमेटली अगले महीने जब मैं रिपोर्ट लूंगा तो मैं उस महीने तक के पीवी के हिसाब से लूंगा। मैं कहूंगा जी हाँ जी अब आपके 10 काम हो चुके होने चाहिए थे, कितने हुए हैं? वो कहता सर मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने 8 कंप्लीट कर सका हूं। 8 की जो 10 कामों की वर्थ थी वो फर्ज करें 2 लाख रुपए थी, और जो 8 काम जो हो गए हैं उनकी वर्थ बनती है 1.5 लाख रुपया। तो मैं उसे कहूंगा भाईजान आप अभी भी 50,000 क्या कहते हैं बिहाइंड स्केड्यूल हैं। और कॉस्ट की जब बात की जाएगी तो पता चलेगा कि वो तो उसने 1.5 लाख ही खर्च किए, मतलब पहले उसने 60,000 खर्च किए थे पहले हफ्ते के एंड तक, लेकिन अभी उसने खर्चे कंट्रोल किए, उसने 1.5 लाख ही खर्च किए। मतलब 1.5 लाख का काम किया, 1.5 लाख रुपए खर्च किए। इसका मतलब है ही हैज कंट्रोल्ड द कॉस्ट वेरिएंस। बट ही अगर आप गौर करें तो ही हैज कंसिस्टेंटली इंप्रूव्ड ऑन स्केड्यूल ऑल्सो, बट ही कुड नॉट मीट इट। इसका मतलब है आई सी प्रॉमिस इन दिस पर्सन कि अगले महीने तक ये अपने स्केड्यूल को मीट कर ही लेगा। और कॉस्ट का मैं फिर इस दफा उसे मैं जो वार्निंग दूंगा वो ये दूंगा कि भाई यू आर डूइंग वेल, जरा स्केड्यूल की तरफ अटेंशन ज्यादा दो, लेकिन ख्याल रखना कि कॉस्ट अब स्लिप ना हो दोबारा। जब हर हफ्ते उसके ऊपर इतना जबरदस्त चेक एंड बैलेंस का सिस्टम लगा होगा तो वो दोनों घोड़ों की लगामें साइमल्टेनियसली काबू में रखने की कोशिश करेगा। कुछ ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हो गई जी? नहीं सर बिल्कुल नहीं हुई। तो ये जो अर्नड वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू का फर्क था उसको हम स्केड्यूल वेरिएंस कहते हैं। जो अर्नड वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट का फर्क था उसको हम कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। और अभी इस वक्त जिस जगह पे भी हम खड़े हैं, 1 हफ्ते पे, 2 हफ्ते पे, 3 हफ्ते पे, इसकी रोशनी में, अब तक के डेटे की रोशनी में मेरा क्या ख्याल है कि अब ये प्रोजेक्ट कितने पैसों में खत्म होगा? पहले हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक तो मैं दुगने पैसे खर्च कर रहा था। इसका मतलब है कि मेरा एस्टीमेट एट कंप्लीशन क्या बना? बजट एट कंप्लीशन तो 3 मिलियन था, लेकिन चूंकि मैं डबल पैसे खर्च कर रहा हूं तो मेरा एस्टीमेट एट कंप्लीशन 6 मिलियन बनता है। इतने का तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी इतने का नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में अवार्ड हुआ है 4 मिलियन में, और हम जिस स्पीड से काम कर रहे हैं तो ये तो 6 मिलियन खा जाएगा। इसका मतलब है कि हम कमाने की बजाय जेब से पैसा दे रहे होंगे प्रोजेक्ट पे। दिस इज द बिग आई ओपनर। तमाम आपकी जलजला आ जाना चाहिए पूरे इंतजाम के अंदर कि एक ही हो रहा है भाई, ये तो उल्टा नुकसान वाला प्रोजेक्ट हमने पकड़ लिया। तो उन्हें ये फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को और प्रोजेक्ट को काबू में रखने की जरूरत पड़ेगी। तो एस्टिमेटेड कंप्लीशन इज अ फोरकास्टेड अमाउंट, एंड दिस इज क्या कहते हैं इसे, एक जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है
इस बात को देखने का या विजुलाइज करने का कि हम कहां जा रहे हैं। और अगर बीएसी और ईएसी का फर्क निकाला जाए, बीएसी 3 मिलियन था, ईएसी 6 मिलियन है, तो 3 मिलियन माइनस 6 मिलियन, इट टेल्स यू कि हमारी वेरिएंस एट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पे हमारे 3 मिलियन एक्स्ट्रा लगेंगे, -3 मिलियन इसका जवाब निकलता है। बीएसी माइनस ईएसी 3 मिलियन माइनस 6 मिलियन, -3 मिलियन की वेरिएंस एट कंप्लीशन है। ये है जी आपकी वेरिएंस एट कंप्लीशन। ये टर्मिनोलॉजी जो मैंने अभी तक आपको बताई है, ये आपको समझ आ गई? जी तकरीबन आ गई है सर। अच्छा, अभी यू जस्ट हार्प अपॉन इट और थोड़ा इसको हजम करने की कोशिश करें इतनी बातचीत को। कल मैं इससे आगे आपको लेके चलूंगा और इनके फार्मूले कैसे बनते हैं और कैसे कैलकुलेशंस होती हैं उसकी डिटेल में मैं जाऊंगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि मोर देन हाफ ऑफ द फार्मूलाज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आप जरा स्केड्यूल वेरिएंस का फार्मूला डिजाइन करें, कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला डिजाइन करें, वेरिएंस एट कंप्लीशन का फार्मूला डिजाइन करें। ये 3 चीजें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इनके फार्मूले डिजाइन करें जरा। चलें जी, मेरा ख्याल है वी शुड कॉल इट अ डे। और मेरा जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको अर्न वैल्यू का दिया था, वो देना था, वो तो मैंने दे दिया। ऑल्दो हम इसे खत्म तो नहीं कर सके, कल हम इंशाल्लाह इसको क्लोज डाउन कर लेंगे। जी, एनी कमेंट्स? ठीक नहीं सर, ठीक है, इंशाल्लाह समझ आ रही है। तो बस थोड़ा सा सर अभी एक आध एग्जाम बताइए। सर अभी ये जो बाकी हमारा इसके अंदर कोर्स करिकुलम जो भी अभी रह गया है, ये हम मतलब कल परसों 2 दिन है, 2 दिन में कवर अप कर लेंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें मैं देख रहा था इसके अंदर। कोई बात नहीं सर, आप उसकी फिक्र ना करें इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने अब बेड़ा उठाया है आपको कराने का, तो मैं जितने दिन भी एक्स्ट्रा लगे मैं लगा दूंगा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। ये कॉस्ट निकल गया ना जिस दिन, तो कॉस्ट के बाद आप देखेंगे आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। उसके बाद कोई इतनी हर्डल आने वाली, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ मतलब वो जैसे आप जिस तरह आप बेहतर समझ आए उस हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक हो गया। चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी, खुदा हाफिज। थैंक यू सर। अस्सलाम।